I'll be teaching you a very beautiful poem written by William Wordsworth, and the name of the poem is The Solitary Reaper. बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसमें पोएट स्कॉटलैंड के पहाड़ियों पर घूम रहा था, तो सडनली व्हेन ही वाज wandering on the mountain here and there, he saw a girl all alone in the field. She was working in the field. While working, she was singing also, and her voice was very melodious, enchanting voice. The poet was totally enchanted by the song she was singing, the melodious voice of that girl. All these things were very attractive. Though the poet was not able to understand the meaning of the song. Why? Because it was the girl was singing in Scottish language, but still he was able to understand the rhythm of that song or the tone of that song, and he could understand that she was singing a sad, melancholy, gloomy kind of song about some loss, song about some pain, song about some past unhappy incident. So that's why the name of the poem is The Solitary Reaper. Solitary means lonely, akeli. Reaper, a girl, a person who reaps the field. A person who reaps the field, एक ऐसा इंसान जो फसल काटता है. So here we are talking about a solitary girl who was reaping the field, and the story and the poem belongs to Scotland. So this is the way the poem starts. लाइन बाय लाइन I'll be teaching you, so please concentrate. ध्यान दीजिए, हर लाइन को मैं यहाँ पर elaborate करूंगा, हर वर्ड को. Behold her, look at her. Behold means watch her. If you have pen, kindly note down the main meanings of the word which I tell you over there. So behold her, single in the field. Look at that girl. Look at that girl. She is single, lonely. A single girl in the field. Yon solitary highland lass. She is a single, solitary, lonely highland lass. Lass means a young girl, a young Scottish girl. Highland means highland. The highland belongs to the mountain regions of Scotland. Reaping and singing by herself. What is that girl doing? This girl is reaping. This girl is singing by herself. Stop here or gently pass. Suddenly कुछ लोग पोएट के आसपास गुजरने लगे. सो मे बी वो शोर मचा रहे हो, और पोएट नहीं चाहता था कि लड़की का गाना बंद हो या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो. तो वो अपने अगल बगल गुजरने वाले और ट्रेवलर्स को या और लोगों को कहता है कि देखो प्लीज, इधर यू स्टॉप हियर, या तो यहाँ रुक जाओ और इस लड़की का गाना आराम से सुनो, और अगर यहाँ से गुजर भी रहे हो तो जेंटली गुजरो, आराम से गुजरो, शोर मत करो. द पोएट डिड नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन द सिंगिंग ऑफ दैट गर्ल. वो नहीं चाहता था कि कुछ भी सुनकर वो लड़की रुक जाए. सो एक सिंगल सी, एक लोनली, एक अकेली लड़की को खेत में फसल काटते हुए पोएट ने देखा. ठीक है, शी वॉज अ हाईलैंड लैस. ठीक है, शी वॉज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, द माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, एंड शी वॉज रीपिंग एंड सिंगिंग in the field. While working, she was singing over there, and when some people were passing from that part where the poet was standing or listening to the song of that girl, maybe they might be making noises over there. That's why he requested them, please, either you stop here, or if you are passing from here, kindly pass gently, don't make any noise. Alone she cuts and binds the grain. She is all alone. पूरे खेत में you cannot see any other person over there. She is working lonely. That's why she is called solitary reaper, akeli reaper. She is cutting. She is binding the grain all by herself. And while doing this, ये करते हुए, she is singing a melancholy strain. She is singing a sad melancholy. Melancholy means sad. Strain here means song. While doing this, she is singing a gloomy song. ऐसा करते हुए, फसल काटते हुए, बांधते हुए, वो एक दुख भरा गाना गा रही है. Oh, listen. सबसे कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्योंकि उसकी आवाज से profound, deep, wail, valley
इस डीप वैली में उसकी आवाज जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। द साउंड ऑफ दैट गर्ल इज ओवरफ्लोइंग इन दैट एंटायर वैली। पूरी वैली में उस लड़की की आवाज गूंज रही है। ध्यान से सुनो, वो इतना मेलोडियस गा रही है, इतना प्यारा गा रही है। हाँ, गाना सुनकर साफ पता चल रहा है, टोन से साफ पता चल रहा है that she is singing a melancholy strain, she is singing a sad song. The song is so beautiful that her song is compared to the song sung by a nightingale. Metaphor, because direct comparison है। यही comparison like और as लगाकर होता तो simile होता। कह रहा है, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. आज से पहले अरेबियन सेंट में किसी शेडी जगह पर ट्रैवलर जब थक कर बैठ जाते हैं, वियरी बैंड, जब उनका बैंड, उनका ग्रुप थक हार कर बैठ जाता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए वो अपने साथ पिंजरों में नाइटिंगेल बर्ड्स लेकर जाते हैं। वो मेलोडियस आवाज में गाती है और थके हुए ट्रैवलर्स का एंटरटेनमेंट होता है उस आवाज से। बिलीव करो, द पोएट इज सेइंग कि इतनी प्यारी आवाज तो अरेबियन सैंड में थके हुए ट्रैवलर्स को एंटरटेन करने वाली नाइटिंगेल की भी नहीं होगी। नाइटिंगेल की आवाज में भी इतना मेलोडी नहीं होगी जितनी मेलोडी उस सिंगल, उस सॉलिटरी, उस अकेली लड़की की आवाज में थी। She was singing in such a melodious voice that her voice is compared to the voice of nightingale, and she is rather given a better position over there. She is compared to nightingale and described over here better than the nightingale. A voice so thrilling never was heard. The poet is saying, I have never heard such a thrilling voice in my entire life. मैंने पूरी जिंदगी में इतनी थ्रिलिंग आवाज कभी नहीं सुनी थी। इवन स्प्रिंग सीजन में कुकू बर्ड, मेलोडियस बर्ड जो साउंड करती है स्प्रिंग के सीजन में, ठीक है, वो भी, ये भी मेटाफर है, ये भी मेटाफर है। हर वॉइस, हर साउंड इज अगेन कंपेयर्ड टू अ कुकू बर्ड, दैट इज metaphor. Comparison without like or as is metaphor. So इतनी थ्रिलिंग आवाज तो किसी कुकू बर्ड की भी नहीं होती जो स्प्रिंग टाइम में गाती है, मेलोडियस आवाज में गाती है। इतनी खूबसूरत आवाज तो किसी कुकू बर्ड की भी नहीं होती जितनी मेलोडियस, जितनी प्यारी, जितनी अच्छी आवाज उस लड़की की थी। हर साउंड वॉज ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। उसकी आवाज से वहां के वैली के बाद जो समुंदर पड़ता है, साइलेंट समुंदर पड़ता है। फारदेस्ट हेब्राइड्स मीन द फारदेस्ट रिमोट आइलैंड्स ओवर देयर, स्कॉटलैंड के जो रिमोट आइलैंड्स हैं, शांत, बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल किनारे पर अलग आइलैंड जो है वो, जहां किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं होता, वहां के साइलेंस को, उस रिमोट आइलैंड के वहां के साइलेंस को अगर कोई चीज ब्रेक कर रही थी, हर साउंड वॉज ब्रेकिंग दैट साइलेंस, हर वॉइस वॉज ब्रेकिंग दैट साइलेंस, हर मेलोडियस वॉइस वॉज ब्रेकिंग दैट साइलेंस। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? तो इसमें कह रहा है अब इस पैसेज में कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा? क्या मुझे कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? मतलब why? Because the poet is not Scottish. पोइट जो है वो स्कॉटलैंड का नहीं है, वो वहां घूमने गया है, वो स्कॉटलैंड का नहीं है, उसे वहां की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो इसलिए उसकी टोन को तो समझ पा रहा है, फीलिंग्स को तो समझ पा रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the lyrics, the meaning of the song. That's why he's asking the people around him, will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि उसके गाने का क्या मीनिंग है? फिर he is taking some ideas, he is speculating, वो कुछ आइडियाज लगा रहा है, कह रहा है perhaps the plaintive number flow, maybe she is singing a plaintive song, a sad song. Plaintive number means it's a plaintive song. Sad song, number means song over here.
मे बी उसका गाना कोई सैड सॉन्ग है, शायद किसी ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग, कोई पुरानी भूली हुई चीज को लेकर, कोई पुरानी जिंदगी के इंसिडेंट को लेकर, मे बी लंबे टाइम पहले कोई बैटल हुआ हो, उस बैटल में शी माइट हैव लॉस्ट हर सम ऑफ हर पीपल ओवर देयर, कोई जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट इंसान उसका चला गया हो, मे बी उसकी याद में गाना गा रही है। और इट कैन बी अ हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, मे बी उसका कोई बहुत ही नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, जो डे टू डे एक्टिविटी का कोई बेसिक सा सॉन्ग हो, ऐसा भी हो सकता है। जब तक मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कैसे बता दूं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मे बी किसी फार ऑफ अनहैप्पी ओल्ड पुराने इंसिडेंट को लेकर ये गाना, मे बी ये आज का कोई नॉर्मल हम्बल ऑर्डिनरी सॉन्ग है, मे बी इट्स अ सॉन्ग अबाउट फेमिलियर मैटर, कोई बहुत ही कॉमन मैटर को लेकर ये सॉन्ग, मे बी द सॉन्ग इज अबाउट सम नेचुरल सॉरो, मे बी शी इज हैविंग सम पेन, सम लॉस, समथिंग लाइक दिस दैट हैज बीन, जो या तो हो चुका है, or maybe she is about to face some problem in her life again, maybe उसकी लाइफ में कोई sadness आने वाली है, she is bothered about that, maybe इस वजह से she is sad, but whatever is the reason, the song has that sad tone, the song has that sad tone. No matter the poet is not able to understand the word to word meaning over there, but he can understand the feelings in the song, he can understand the pain in the song, he can understand the sorrow in the song, he can understand that the song is about some loss, some past incident, some pain that either might have happened or about to happen in her life. It may be about some old unhappy far off thing, it may be about some battle which happened maybe long ago, she might have lost some important person of her life. तो इस चीज को लेकर, वो सॉन्ग की फीलिंग को लेकर फॉर श्योर है कि इट इज अबाउट समथिंग सैड। नाउ द सेकेंड लास्ट पैसेज, व्हाटएवर द थीम, गाने की जो भी थीम है, चाहे वो अनहैप्पी है, सॉरोफुल है, लॉस के ऊपर है, पेन के ऊपर है, या ऑर्डिनरी सॉन्ग है, जो भी थीम है, व्हाटएवर थीम द मेडन सैंग, वो मेडन गर्ल, वो कुंवारी लड़की, वो सॉलिटरी रीपर, हु इज द मेडन ओवर हियर, द सॉलिटरी रीपर, वो अकेली लड़की जो भी गाना गा रही है, जिस भी थीम पर गाना गा रही है, सुनकर ऐसा लग रहा है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसे उसके गाने का कोई एंडिंग नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसे काम करते हुए देख रहा हूं। While doing her work, she is singing over the sickle bending, हाथ में सिकल लेकर, सिकल इज अ दराती, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिससे फसल काटी जाती है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क शेप्ड काइंड ऑफ मींस नाइफ, ठीक है, उससे वो अपनी फसल काट रही है, इट्स अ सॉ, आरी टाइप होती है, वो सिकल लेकर बेंड होकर झुककर खेत में अकेले काम कर रही है, अकेले ही गाना गा रही है, और बहुत ही मेलोडियस आवाज में गाना गा रही है। आई लिसन, मैंने उसके गाने को सुना, एंड तक सुना, मोशनलेस होकर सुना। चर्च द सॉन्ग हैड सच अ रैप्चरस फीलिंग ओवर देयर, गाने में इतना इतना प्यारा गाना था, इतना बेहतरीन, इतना मेलोडियस आवाज थी कि मैं मोशनलेस होकर, बिल्कुल चुपचाप होकर गाना सुनता रहा। गाना खत्म हो गया, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, उसके बाद जब गाना खत्म होने के बाद मैं पहाड़ी चढ़कर घर आ गया, पहाड़ी से मैं अपने साथ कुछ लेकर जरूर आया, मैं खाली हाथ नहीं आया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, वो गाना, that song had an indelible impression on my heart, indelible impression, an impression that cannot be erased. उस सॉन्ग का मेरे दिल पर एक indelible impression पड़ा, वो सॉन्ग मेरे दिल के अंदर समा गया, बैठ गया, बस गया। मैं उस पहाड़ी से चलकर चला तो आया, आज भी long after it was heard no more, काफी लंबा टाइम बीत गया, मैंने वो गाना दोबारा कभी नहीं सुना। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड दैट सॉन्ग,
but still I have that music in my heart. आज भी वो म्यूजिक मेरे दिल के अंदर है, मेरे मन के अंदर है, मेरे मन में बसा हुआ है. आज भी वो म्यूजिक मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है. Means it was such a beautiful melodious voice of that girl that poet was never able to forget that song. So this is the poem Solitary Reaper. I hope समझ में आ गया आप लोगों को.